Assalamu alaikum, guys. Welcome back. This is your instructor Shah Fahad Khan, and we are back with another video on. This is our very first video on chapter number 3 of your not A, of your intermediate physics first year, chapter 3, motion. Right. So let's get started. Bismillah Rahman Rahim. These are the three things that we are gonna cover in this video. Okay. So basically, let's get started. These are the first things that we need to do. Then we are going to continue after these on the next topics. Okay, so let's get started with displacement. Okay, what is displacement? Displacement, as we've talked about in the previous lectures, is also a physical quantity. And displacement by definition is just a change in position of an object. Change in position of an object. So if an object is placed at a point A and it changes its position from A to point B, in a particular direction, from A to B is the direction, then we can say that this is the displacement that has been covered from A to B. The length of this arrow that has been covered is the displacement. Displacement can also be defined as the shortest possible directed distance between 2 points. Shortest possible directed because it's a vector, distance between 2 points. Between 2 points. Okay. So that's your displacement. If you have 2 or 3 paths going in between two points, the shortest possible distance in between them is your displacement A and B. If you have some other path in between these 2 points, these paths would have different lengths and would have a longer length as compared to this path. So therefore, this path is called a displacement, which is the shortest path, the shortest change in position in between these 2 points. After displacement comes velocity. What is velocity? Velocity by definition is actually the rate of change of displacement. Rate of change of displacement. So mathematically we can write that velocity is actually equal to the change in displacement per unit time. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दें तो आपके पास वेलोसिटी आ जाती है. ठीक है, अगर आप टोटल वेलोसिटी निकालना चाहेंगे, टोटल वेलोसिटी किसी जर्नी की, उसका फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, अच्छा, एंड इसके अलावा हाँ ग्राफ्स भी होते हैं वेलोसिटी के, ग्राफ्स देख लेते हैं. वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम और डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम दोनों के ग्राफ्स होते हैं. बेसिकली दोनों ग्राफ्स देख लेते हैं. अच्छा, by the way, let's look at a journey first. This is a journey in which an object is moving from point A. Okay, let's not call it point A, let's call it point O. This is our starting position, starting point. And from the starting point, an object moves to another point A. And then from this point A moves to another point B. And then as it moves to another point B, it returns back to some other point. It returns from B back over here to a point C. Okay. Now, what's happening? If I asked you to give me the value for the displacement from O to A, so it's gonna be this vector over here from O going all the way to A. From O to C, it's gonna be this vector till here. It's this entire vector till C. From O to B, it's gonna be the entire vector till B. From O to C, it's just gonna be this length, okay? It's not gonna be the entire length. It's just gonna be this length. It is the shortest possible distance in between a starting point and that point. This is your displacement. इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट और किसी दूसरे पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल होता है. तो इस केस में सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट बी का, क्योंकि वो ओ से सबसे ज़्यादा दूर है. ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम इसका ग्राफ बना लें तो बाय द वे डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का जो ग्राफ होता है, लेट्स से ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो इस ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देख लेते हैं. बेसिकली इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है या जो स्लोप होता है वो इक्वल टू होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स. वाई एक्सिस पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. चेंज एक्स एक्सिस पर टाइम है. चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, दिस इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट.
विच इज वेलोसिटी। सो द ग्रेडियंट या स्लोप जो इस ग्राफ का होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, वेलोसिटी बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। अगर इस बार आप देखें तो ये ग्रेडियंट पॉजिटिव है, अगर ये लाइन इस तरह से होती तो फिर ग्रेडियंट क्या होता, नेगेटिव होता, नेगेटिव वेलोसिटी होती। ठीक है, उस केस में। अब ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की ग्राफ की बात हो गई। अब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं। अच्छा, वेलोसिटी अगर हम इस ग्राफ को देख कर बनाएं तो वेलोसिटी इस ग्राफ का ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट चूंकि कांस्टेंट है और पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, ये मतलब ये इसकी एक वैल्यू होगी। लेट्स अज्यूम इसकी वैल्यू है 10। ठीक है, इसके स्लोप की वैल्यू है 10, तो ये 10 पर इसका ग्राफ कांस्टेंट रहेगा वेलोसिटी टाइम का, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका स्लोप कांस्टेंट है इस लाइन का, इसका स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस ग्राफ में दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक तो एरिया अंडर द ग्राफ होता है। एरिया जो है आपको रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट, बल्कि और जो इसका ग्रेडियंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या चीज़ है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था ना, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर इस ग्राफ को आप देखें तो एक्सेलरेशन स्लोप क्या है, मतलब ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट जीरो है, क्योंकि लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन भी जीरो है। ठीक है, इस केस में एंड एक्सेलरेशन जब जीरो होती है इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड द ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेलरेटिंग। मतलब कौन सी मोशन है, इस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कहते। ठीक है, ये बात याद रखना। जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन पर नहीं लगाते, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर लगाते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ एक इक्वेशन लगती है, वो होती है एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाली फॉर्मूला। अब ये तो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ हो गए और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गए। एक्सेलरेशन देख लेते हैं और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बना लेते हैं। बेसिकली मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोई दूसरी जर्नी का बना रहा हूँ अब यहाँ पर। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है और ये ग्राफ है जो कि पास कर रहा है इस तरह से। ठीक है, अब इस ग्राफ में जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एरिया इस ग्राफ का अगर आप देखें तो वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा एंड जो इसका जो ग्रेडियंट होगा वो आपको एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो इस ग्राफ को देखते हुए अगर मैं एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाऊँ तो एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम का जो ग्राफ होगा वो इसके ग्रेडियंट के इक्वल का ग्राफ होगा। ठीक है, ग्रेडियंट इसका भी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, मतलब लेट्स अज्यूम कि इसके ग्रेडियंट की वैल्यू कोई आ रही है 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन का जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ होगा उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 पर कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एंड ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है, पॉजिटिव में है, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं गई। ठीक है, दी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की भी बात हो गई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की भी बात हो गई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की भी बात हो गई और इन तीन के डेफिनेशंस की भी बात हो गई। अब इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये तीनों की तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और इनकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई किए बगैर इनकी कोई मीनिंग नहीं होती। ठीक है, एक्सेलरेशन भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। अब ये तो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब इनके वेक्टर डायग्राम्स की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को अगर आपको वेक्टर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो इस पर तो हम बात डिटेल में कर चुके हैं। अब यहाँ देखें, अगर एक पॉइंट ए है और इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये वेक्टर शुरू होगा पोजीशन वेक्टर, और ये पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट ए का पोजीशन शो करेगा। इसको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकता हूँ क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ओरिजिन से के रेफरेंस से ये इसकी पोजीशन शो कर रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का ही वेल डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का नहीं, ये वाई अगेंस्ट एक्स का ही ग्राफ है। अच्छा, आप अगर एक और वेक्टर ले लेते हैं किसी दूसरे पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट का, ये वाला। अब आपको यहाँ पर ये दो वेक्टर्स जो हैं ये आपके हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर्स। ठीक है,
अब आप मुझे ये बताएं कि ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आपके पास ओ से ए तक का वेक्टर है, यानी ओ से ए तक का डिस्प्लेसमेंट है जो कि यहाँ पर गिवन है। लेट्स अज्यूम के उसके कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल 2i + 3j उसकी वैल्यू है। तो 2i + 3j, और ओ बी की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है i + j। i + j तो बहुत कम हो जाएगा, चलो लेट्स से 3i + 5j। अब इसके बाद आपको निकालना है ए बी। तो ए बी निकालने के लिए आप ओ बी में से ओ ए को माइनस कर दें, ठीक है। तो ओ बी की जो भी वैल्यू है आपके पास 3i + 5j, उसमें से माइनस कर दें 2i + 3j को, एंड इसका आंसर आपके पास आ जाएगा i + 2j। i + 2j ये जो है ये आपका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी तक का। इसे मैं कह सकता हूं कि क्या ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, फ्रॉम चेंज इन पोजीशन है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यस, दिस इज चेंज इन पोजीशन। अगर इसी चेंज इन पोजीशन को मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये वाला वेक्टर डिस्प्लेसमेंट से चेंज होकर वेलोसिटी का वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात थी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। अब हम वेलोसिटी, अच्छा बाय द वे, टाइम से अगर मैं डिवाइड नहीं करूंगा ना तो फिर ये वेलोसिटी का वेक्टर नहीं होगा बल्कि डिस्प्लेसमेंट का ही वेक्टर होगा। लेकिन इस वेक्टर की एक खास बात ये होगी कि इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन वेलोसिटी के ही डायरेक्शन के इक्वल होगी। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन द पोजीशन, मीनिंग इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि वेक्टर वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, ए बी भी एक वेक्टर है। अब इसके बाद आप बात कर लें तो वेलोसिटी के बाद आप एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट के बाद आप वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद आप एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए दो वेक्टर्स ले लेते हैं वेलोसिटी के, इसको v1 कह देते हैं, इसको v2 कह देते हैं। अब मुझे अगर एक्सेलरेशन की निकालनी है कोई डायरेक्शन, तो बेसिकली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी को कहते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का वेक्टर निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी v2 - v1, राइट। मतलब ये आपका रिजल्टेंट है, इसमें से आप v1 को माइनस कर दें। इस वेक्टर का जो भी डायरेक्शन होगा, मतलब ये वाली डायरेक्शन, ये आपकी डायरेक्शन किसके रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी है, राइट। चाहे v1 - v2 हो या v2 - v1 हो, ये वेक्टर है तो चेंज इन वेलोसिटी, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को, ठीक है। ये यहाँ नीचे भी पॉइंट कर सकता है, ऊपर भी पॉइंट कर सकता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। आप अगर ऊपर पॉइंट करते हैं तो मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उस तरफ है, नीचे करते हैं तो इस तरफ है, ठीक है। बट यहाँ इतना बस सिर्फ आपको ये बताना चाहिए कि एक्सेलरेशन का वेक्टर कैसे निकालना है जब दो वेलोसिटी के वेक्टर्स दिए होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद